Hello students, welcome to economic class. Myself Arvind Kumar Pandey, and in this video children I will teach you microeconomics for CBSE students. So from today onward I am going to start the very first chapter of introductory microeconomics. As you have seen, information regarding the class I have written on the board, class 11 CBSE, and children, this is the first video of microeconomics. So in this chapter, before starting the topic, I will introduce you about the chapter. There are some terminology, some terms which I need to explain you properly so that you can understand properly. First of all children, the first point I have written on the board is economic activity. What is economic activity? Children, we as a human being perform two types of activity: economic activity and non-economic activity. Economic activity is the activity in which there is an involvement of money, and non-economic activity is the activity which do not involve the money. It means we perform economic activity for earning money, and non-economic activity we perform for mental satisfaction or psychological satisfaction. So economic activities are activities which we perform to earn money. For example, teacher go to school, doctor go to hospital, labor is working for others, right? And businessmen doing business. These are the economic activity because these are doing for earning money. Next is non-economic activity. Non-economic activity, the example of these activities are, for example, going to temple, right, worshipping the god, activities done by the parents for their children, right, and social services, charity. These are non-economic activity because there is no involvement of money. Next is evolution of money. Evolution of economics. Economics की शुरुआत कहाँ से हुई? So children, in this video, in this point, I would like to tell you, economics is derived from the Greek word, right? It is originated from the two words. First is oikos, second is naming, right? Oikos means household and naming means management. Oikos means household, naming means management. These two words form the word economics. Right? And economics means house management. How to manage the house. This is the meaning of economics. This is derived from the two Greek words, oikos and naming. Both are Greek words. Including these two words, there is a origin of economics. Economics means household management, right? First of all, economic word has been used by Alfred Marshall. Alfred Marshall was the economist who used economics word first time in his famous book The Principles of Economics. Principles of Economics. But we call as Adam Smith as the father of modern economics. So remember,
called as the father of economics. But Alfred Marshall was the person, or we can say was the economist, who used this economic word first time in his famous book in 1890. Alfred Marshall used the word economics first. So this was the evolution of money. Next point is on which we are going to discuss is meaning of an economy. What is the meaning of economy? So children, economy is a system, right? Economy is a system which provide people means to work and earn, right? As you can see that, let me clean the board first. So children, as I told you that economics is a system which provide people the means to earn, work and earn. ठीक है? It is a system, right? Economic system है where people earn and work, or we can say work and earn, right? तो इकोनॉमी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में पीपल लोग जो है वर्क करते हैं, और वर्क क्यों करते हैं? सो हियर वर्क मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी. Economic activity. In the beginning of the chapter, I already told you the activity which we perform to earn money is called as economic activity. So, economy is a system which provide means the people to earn and work. एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पीपल वर्क भी करते हैं और अर्न भी करते हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि ये सभी को ऑर्गेनाइज करती है. अब देखा है कि आपने डॉक्टर अपने हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं. टीचर गोज टू स्कूल फॉर टीचिंग द स्टूडेंट. बिजनेस मैन आर डूइंग बिजनेस. व्हाट आर दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, and these people are performing economic activity to earn, right? उन्हें पैसे मिलेंगे, उस पैसे से वो अपनी डिमांड को फुलफिल करेंगे. जो उनकी डिमांड है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल गो टू मार्केट, दे विल परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट on which we are going to discuss is meaning of scarcity. So children, meaning of scarcity. So let me tell you what is the meaning of scarcity. Children, scarcity means limitations. Scarcity means limitations. Limitations of resources. Or there is a situation when demand is more than supply. एक सिचुएशन है, इन दिस सिचुएशन डिमांड आर मोर देन सप्लाई. वो चीज़ें जो हम जिनसे हमारे जो हमें सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए, वो क्या है? वो लिमिटेड है, और उनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है. सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है. तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी. चिल्ड्रन, स्कार्सिटी के बारे में हम और आगे चैप्टर में बात करेंगे. यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, तो भी मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि स्कार्सिटी का मतलब है लिमिटेशंस. अगर आप कोई भी चीज़ लो, फॉर एग्जांपल वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर क्या लिमिटेड है, लेकिन वाटर को यूज करने के हमारे बहुत सारे नीड हैं जो वाटर फुलफिल करता है. वाटर से हम बाथिंग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन वाटर की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है. आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू साइंस वाटर की जो कंटेंट है वो उतनी रहती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती है, जितनी है उतनी रहेगी. और अगर हम बात करें मनी की, तो मनी भी लोगों के पास लिमिटेड ही है,
और उस लिमिटेड मनी से उनकी अनलिमिटेड डिमांड है। हमारी डिमांड क्या है, वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारा जो रिसोर्स है, जो मनी है, वो लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड मनी से ही हमें अपनी अनलिमिटेड डिमांड को फुलफिल करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? तो चलिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी की वजह से अराइज होती हैं। बोथ आर इंटर रिलेटेड। इन द फर्स्ट पॉइंट आई टोल्ड यू मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या स्कार्सिटी का मतलब है कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सो डिमांड आर अनलिमिटेड, सप्लाई आर लिमिटेड। अगर मैं ह्यूमन नीड की बात करूं तो ह्यूमन नीड क्या है? ह्यूमन नीड जो है अनलिमिटेड है। जो हम लोग हैं, हमारी जो जरूरत है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो अनलिमिटेड है। हमारी एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी मर्ज हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी मर्ज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी जरूरत अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई का मतलब है रिसोर्सेस। रिसोर्सेज का यहाँ पर उन चीज़ों से मतलब है जिनसे हमारी नीड फुलफिल होती है, जिनको यूज करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखो, एक तो हो गया कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, right? These are the three main economic activity. कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन करता है कंज्यूमर। आप और हम मार्केट से कंजम्पशन की चीजें लाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इरेज कर देते हैं, पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर की और प्रोड्यूसर की। तो चिल्ड्रन, वी एज अ कंज्यूमर always try to maximize satisfaction। आप और हम एज ए रीजनल कंज्यूमर, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए। कैसे? कि जो हमारे रिसोर्स हैं, और हमारे रिसोर्स क्या है? मनी, ठीक है, और जो हमारी मनी है वो लिमिटेड है, ठीक है। इस लिमिटेड रिसोर्स से, इस लिमिटेड मनी से हम अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो लिमिटेड है, जो हमारी डिमांड है वो अनलिमिटेड है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें जो है वो इस लिमिटेड मनी से पूरी हो सके। तो यहाँ पर अब हमारी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे पास मनी है, तो मनी से हम राशन भी ला सकते हैं, मनी से हम स्कूल की फीस भी डिपॉजिट करेंगे, हम मनी से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी डिपॉजिट करना है, हमें सेविंग भी करना है, ठीक है, हमें EMI भी देनी है। अब ये तो कोई हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक। तो इन सारी ज़रूरतों को तो हम पूरा कर नहीं सकते, तो कुछ एक ज़रूरत को छोड़ना पड़ेगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम पहले ये करें, पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिपॉजिट करें, सेव करें, या EMI दें, ठीक है। तो एज अ कंज्यूमर हम अपने लिमिटेड रिसोर्स, जैसे जो मनी है हमारे, उसको इस तरीके से हम स्पेंड करना चाहते हैं, इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि हमारी जो लिमिटेड है वो अनलिमिटेड है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये तो हो गया कंज्यूमर का बिहेवियर। अब हम आ जाते हैं प्रोड्यूसर की, ठीक है। तो प्रोड्यूसर चाहता है कि उसको प्रॉफिट मिले, राइट। वो अपने प्रॉफिट को हमेशा इंक्रीज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर का काम है कि वो इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, रॉ मटेरियल है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है,
ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनको यूज करके वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के बाद वो मार्केट में उसको सेल करता है। तो जब कमोडिटी को या सर्विसेज को या गुड्स को जब सेल करने के लिए मार्केट में जाता है तो वो चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम प्राइस पर सेल हो सके। तो मैक्सिमम प्राइस में सेल होने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा प्राइस में वो बेचेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ही ऑलवेज वांटेड टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, ही ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। तो एज अ प्रोड्यूसर उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं कि वो उनको प्रोड्यूस करे। यानी अगर ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर उसने कोई गुड बनाया और मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है तो उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये डिसाइड करने से पहले कि वो किस गुड का प्रोडक्शन करे उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो सोप बनाए, टूथपेस्ट बनाए, शूज बनाए, ठीक है, टूथब्रश बनाए, वॉशिंग पाउडर बनाए, कौन सी कमोडिटी का सिलेक्शन करे। तो उसकी भी ये प्रॉब्लम है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब उसने सेलेक्ट कर लिया कि वो सोप सेल करेगा तो फिर उसको सेल करना पड़ता है कि उसका प्राइस क्या रहेगा, कितने प्राइस पर उसको सेल करना है। प्राइस कम भी नहीं रख सकता, प्राइस कम रखेगा तो उसको लॉस होगा। प्राइस ज़्यादा भी नहीं रख सकता, प्राइस ज़्यादा रखेगा तो फिर मार्केट में कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा है, लोग उसके प्रोडक्शन को, उसके गुड्स को परचेज नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे तो भी लॉस है। तो उसकी भी प्रॉब्लम है। तो वो ऑलवेज ट्राई एज अ प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज हिज सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। रीजन कि दोनों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। प्रोड्यूसर में जो रिसोर्स, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनको यूज करके जो कमोडिटी बनाएगा उसको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि वो सारे रिसोर्सेज को अकेले ओन कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने प्रॉफिट को हमेशा इंक्रीज करना चाहता है और जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फेक्शन को ऑप्टिमम यूटिलाइज या मैक्सिमम करना चाहता है। तो ये हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, ये है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हम एज अ कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकें और एज अ प्रोड्यूसर हम कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। नेक्स्ट प्रॉब्लम चिल्ड्रन ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमने आपसे डिस्कस किया है कि कंज्यूमर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस कमोडिटी को परचेज करे जिससे उसका मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके और एज ए प्रोड्यूसर को सोचना पड़ता है कि वो किस कमोडिटी का प्रोडक्शन करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों अराइज होती है, क्यों हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि हम कौन सा कमोडिटी को परचेज करें एज अ कंज्यूमर और किस कमोडिटी का प्रोडक्शन करें एज अ प्रोड्यूसर। तो इन सबका चिल्ड्रन जो रीजन है वो एक ही रीजन है जो मैंने आपको पहले बताया, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं। अगर हमारे रिसोर्स अनलिमिटेड होते तो फिर इकोनॉमी पढ़ने की चिड़िया हमें जरूरत नहीं होती, किसी को डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम जो चाहें खरीद सकते हैं और जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं, तो फिर हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज जो है हमारी लिमिटेड, वो सारे रिसोर्स जिनसे हमारी डिमांड फुलफिल होती है वो सब लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस नीड को पहले पूरा करें। और चलिए यहाँ पर एक चीज और है कि जो हमारी डिमांड है, जो हमारी नीड है, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग है। ठीक है ना, इंटेंसिटी जो है वो सब्जेक्टिव मैटर है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर वाटर की बात करूं, ठीक है, तो टू पर्सन है, पर्सन ए है, पर्सन बी है। ठीक है ना, अब वाटर को हम डिफरेंट यूजेज में ले सकते हैं। वाटर से हम बात कर सकते हैं, बाथिंग, ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। ठीक, अब वाटर के देखो कितने सारे यूज हैं, अल्टरनेटिव यूजेज हैं। अब ये दो पर्सन है, पर्सन ए
पर्सन ए को पानी नहीं मिला पीने को बहुत दिन से, और पर्सन बी को पानी तो पीने को मिला लेकिन उनको नहाने का पानी बहुत दिन से नहीं मिला। अब इन दोनों को अगर ये वाटर मिल जाएगा तो देखो वाटर तो सेम है लेकिन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। अगर वाटर ए को मिलेगा तो ए भी वाटर को बाथिंग कर सकता है, ड्रिंकिंग कर सकता है, वॉशिंग कर सकता है। अगर बी को वाटर मिलेगा तो पर्सन बी भी वाटर को डिफरेंट यूजेज मिले। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेज है, वो चाय बना सकता है, खाना बना सकता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों की अभी इसने पानी पीने को नहीं मिला तो ये प्यासा है, और इसको नहाने को नहीं मिला ये नहाना चाहता है, ये अनहाइजीनिक हो गए। तो जब इनको वाटर मिलेगा तो ये तो वाटर को ड्रिंक करना पसंद करेगा, और ये अगर इसको वाटर मिलेगा पर्सन बी को तो ये इससे क्या करेगा, बातें करेगा, क्योंकि इस वक्त दोनों की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। तो चिल्ड्रन हमारी जो डिमांड है वो डिफरेंट इंटेंसिटी की हो जाती है। तो हमें ये चॉइस करना पड़ता है कि हम किस डिमांड को पहले फुलफिल करें। तो जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी हम उस डिमांड को पहले फुलफिल करेंगे। अगर हमारे पास मनी है, ठीक है, ये तो वाटर की बात होगी। अगर मैं मनी की बात करूं, मेरे पास मनी है, मनी को मैं डिफरेंट यूजेस में ले सकता हूं। यहाँ पर मैं दो ही चीज़ की बात करूंगा कि मेडिसिन की बात करूं मैं, और मैं बात करूंगा स्कूल फीस की, ठीक है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को सैलरी मिली। अब इनके घर में कोई पर्सन है, वो बीमार है बहुत दिन से, सैलरी मिली, तो इनकी जो सैलरी है वो लिमिटेड है। उस सैलरी से वो या तो घर में जो उनके पर्सन बीमार हो गया है उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उसको दवा दिलवा सकते हैं, या फिर उस पर्सन की स्कूल फीस, मान लो उनका मिस्टर एक्स का बेटा है जो बीमार है बहुत दिन से, और उसकी फीस, स्कूल की फीस भी डिपॉजिट नहीं हुई है, तो अगर इनको सैलरी मिलेगी तो अब वो क्या करेंगे। आपको पता है कि अगर कोई पर्सन बीमार है, ठीक है ना, इल पर्सन कैन नॉट स्टडी वेल, हेल्दी पर्सन, ठीक है ना, भी अच्छी पढ़ाई कर सकता है, तो यहाँ पर हेल्दी पर्सन का होना बहुत जरूरी है। तो उसको अगर मनी मिलेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने बेटे का इलाज करवाएगा। इलाज करवाने के बाद अगर पैसा बचेगा तो उसकी स्कूल की फीस दे सकता है। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है इसके पास, दोनों ऑप्शन में से किसी एक को वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है चॉइस की। उसकी जो अनलिमिटेड वांट है, डिफरेंट नीड्स है, उसमें से उसको चॉइस करना पड़ता है कि वो किस डिमांड को फुलफिल करेगा। ये हो गई चिल्ड्रन इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात। अब हम बात कर लें कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसके रीजन क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट चिल्ड्रन कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम उसको किस यूज में लगाएं, ठीक है। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि किस कमोडिटी का वो प्रोडक्शन करे। तो पहला तो ये रीजन हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। सेकंड जो रीजन है वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। अब देखो दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं। रिसोर्सेज तो हमारे लिमिटेड है लेकिन हमारी डिमांड अनलिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज हमें अपनी अनलिमिटेड डिमांड को फुलफिल करना पड़ता है। इसलिए प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि कौन सी डिमांड को फुलफिल करें, किस डिमांड को हम छोड़ दें। नेक्स्ट, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके डिफरेंट यूज हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पापा की जो सैलरी मिली है आपके, तो वो स्कूल की फीस भी ला सकते हैं, उससे राशन भी ला सकते हैं, उससे बिजली का बिल भी उन्हें डिपॉजिट करना है, मोबाइल रिचार्ज कराना है, डिश टीवी रिचार्ज कराना है। तो किस यूज में वो अपने मनी को पहले लगाएंगे। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। अब जो हमारी वांट है उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है। हमने जैसे आपको बताया कि ये दो पर्सन है, ए और बी हैं, तो ये प्यासा है और इसने नहाया नहीं, तो इनको पानी मिलेगा तो ये पहले ड्रिंक करेगा क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ड्रिंकिंग करने की ज़्यादा है, ठीक है। फिलहाल अभी जो इसकी करंट नीड है वो ड्रिंक करने की जरूरत है, क्योंकि पानी नहीं पिएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ही कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसने नहाया नहीं है, पानी पीने को तो इसको
मिला लेकिन इसे नहाया नहीं, तो इसको पानी मिलेगा तो पहले नहाएगा। तो इन दोनों की जो इंटेंसिटी है चिल्ड्रन वो अलग अलग है। तो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है हमें डिसाइड करना पड़ता है कि अभी जो हमारी करंट नीड है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन ये थे 1 2 3 4 रीजन जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से अराइज होती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज। चिल्ड्रन इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। Let me clean the board first, children. Yes. Economizing resources, यहाँ मैं लिख लेता हूँ दोबारा। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होगा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, या हम इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, मिनिमम इनपुट से हम मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन कर सकें। जो हमारे रिसोर्सेज चिल्ड्रन उसको इस तरीके से हमें यूज करना है कि हमें इनपुट यानी रिसोर्स हम यूज तो कम करें लेकिन उससे जो हम प्रोडक्शन करें जो आउटपुट हमें मिले वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यानी कि हमें इस तरीके से यूज करना है कि हमें वेस्ट नहीं करना है। हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे, एफिशिएंटली यूज करेंगे, रेशनली यूज करेंगे। हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी है। जब ये डिसाइड कर लिया कि हमारी ये पर्टिकुलर जो है नीड वो सबसे इंटेंस की है तो फिर हमें उसको एफिशिएंटली यूज करना है ताकि हमें ऑप्टिमम उसका आउटपुट मिले, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले और हमारा जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम आ जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है और सिर्फ हमारी इकोनॉमी की नहीं, वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी में जाएंगे आप तो उनकी भी ये 3 प्रॉब्लम जो है सेम है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज किस वजह से होती है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये आपने देख लिया है कि किसी भी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है वो इस रीजन की वजह से अराइज होती हैं। तो इकोनॉमी एज अ होल हैज टू डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनकी अल्टरनेटिव यूजेज हैं उनसे वो इन 3 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस की एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में लोगों को कंज्यूमर गुड भी चाहिए, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मार्केट से आप परचेज कर पिलाते हैं उनको यूज करते हैं, जैसे कि हो गया पेन, ऑयल, मोबाइल, व्हीट, राइस। ठीक है, ये सारे क्या है, ये कंज्यूमर गुड है। कैपिटल गुड में चिल्ड्रन आ जाती हैं मशीनें, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स जिनको यूज करके आप फर्दर प्रोडक्शन में यूटिलाइज करते हैं। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस गुड का प्रोडक्शन करे, कंज्यूमर गुड बनाए यानी लोगों को पेन, ऑयल, मोबाइल दे, या कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करे, मशीनों का जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, किसका प्रोडक्शन करें। तो पहले अच्छा इसमें वार गुड भी बनाने पड़ते हैं, हमें अपनी कंट्री की बॉर्डर को सेफ रखना है तो हमें वॉर गुड भी चाहिए, हमें राइफल बनाने हैं, हमें गन बनाने हैं, हमें फाइटर प्लेन बनाने हैं,
ठीक है, हमें गोला बारूद बनाने हैं, तो उनमें से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें प्रोडक्शन किस चीज़ का करें, विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस में ये तो दो प्रॉब्लम, इसको दो पार्ट और हो गए। पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन हमें करना है। कि मान लो कि हमने दो गुड्स का डिसाइड कर लिया कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके दो गुड का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि मैं राइस को प्रोड्यूस करूंगा और वीट का प्रोडक्शन भी करूंगा। फिर ये डिसाइड करें कि राइस ही प्रोड्यूस करना है और वीट भी प्रोड्यूस, फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है व्हाट क्वांटिटी, दोनों की क्वांटिटी होगी। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स से अगर हम राइस 100 क्विंटल ग्रो कर पा रहे हैं तो हमें वीट थोड़ा सा कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, मान लो हमें 120 करना है, तो फिर हमें वीट का जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर 20 इंक्रीज, यहाँ पर 30 क्विंटल। ठीक है, क्योंकि हमारे रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। अगर मैं राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो मुझे वीट का कम करना पड़ेगा, और वीट का बढ़ाना है तो फिर हमें राइस का कम करना पड़ेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में चुनेंगे, यही दो पार्ट है। पहले इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि कमोडिटी भी तो बहुत सारी है, लिमिटेड कमोडिटी किसका प्रोडक्शन करें। फिर ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें ये पर्टिकुलर कमोडिटी बनानी है, तो फिर ये डिसाइड वो बनानी कितनी है। ठीक है, वॉर गुड ज़्यादा बनाए कि कंज्यूमर गुड ज़्यादा बनाए। अगर कंज्यूमर गुड ज़्यादा बनाए तो वॉर गुड कम बनेंगे, और वॉर गुड ज़्यादा बना दिए तो कंज्यूमर गुड कम हो जाएंगे, क्योंकि रिसोर्स तो वही है ना, रिसोर्स लिमिटेड है। अगर रिसोर्स यूज करके कंज्यूमर गुड ज़्यादा बनाएंगे तो वॉर गुड बनाने के लिए चिड़िन हमारे रिसोर्स कम पड़ जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने वॉर गुड ज़्यादा बना लिया तो कंज्यूमर गुड बनाने के रिसोर्स कम पड़ जाएंगे। तो इनके बीच में डिसाइड करना पड़ता है, हमें दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करना होता है कि हमें अपने बॉर्डर की सेफ्टी के लिए वॉर गुड ही बनाने हैं और कंज्यूमर गुड ही बनाने, ताकि लोगों की डिमांड फुलफिल हो सके। नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज दैट चिल्ड्रन, हाउ टू प्रोड्यूस। जो कमोडिटी प्रोड्यूस करने का डिसीजन हमने यहाँ पर ले लिया है, अब उसका प्रोडक्शन हमें करना कैसे है। प्रोडक्शन जो दो तरीके से हो सकता है, या तो लेबर से हम करवाएं या फिर हम मशीनों से करवाएं। ठीक है, तो हमारे पास दो टेक्निक है गुड्स को प्रोडक्शन करने का। एक तो हो गया LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और दूसरी हुई कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इनको शॉर्ट में इनका दोनों का नेम है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है कि हम इसमें लेबर से काम ज़्यादा करवाते हैं और मशीनों का यूज कम करते हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी उस कंट्री के लिए सुटेबल है जिस कंट्री की पॉपुलेशन अबेंडेंस है। फॉर एग्जांपल इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पर यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। अगर हम लेबर से काम करवाएंगे तो पॉपुलेशन जो है, यहाँ के रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम होगी तो वो मार्केट में जाके फिर डिमांड करेंगे और इससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है जिनके पास लेबर कम है, यानी पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, यानी उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्ट वो करें, तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी सुटेबल रहती है, क्योंकि उनके पास लेबर कम है, वो कैपिटल ज़्यादा काम करवाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री के लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो मशीनों से ज़्यादा काम करवाते हैं और उनके पास आदमी कम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर USA हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, ये ऐसी कंट्री हैं जो कैपिटल सरप्लस कंपनी है, इनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। और लेबर इंटेंसिव कैपिटल जो है वो इंडिया, चाइना, इसमें पाकिस्तान को भी मैं ले सकता हूँ, बांग्लादेश को भी आप क्लास में देख सकते हो। ठीक है, ये लेबर सरप्लस कंट्रीज हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूजफुल है, और कैपिटल सरप्लस वाली कंट्री के लिए जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज मोर यूजफुल। फिर थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस।
कि हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इस क्वेश्चन का एक्चुअली मीनिंग तो ये कि हम प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में ये जो क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं। इसमें प्रोडक्शन, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमने कमोडिटी का प्रोडक्शन किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है कंज्यूमर को। ठीक है, ये जो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस में है, इस गुड्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? कंज्यूमर को करना है। अब जो कंज्यूमर है उनकी जो इनकम है, जो उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉट इक्वल। ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर हैं उनकी जो इनकम है वो इक्वल नहीं है। हमारी जो इकोनॉमी वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो हो गया पुअर और एक हो गया रिच। ठीक है, ये जो पुअर है इनके बारे में जो पुअर है इनके बारे में सोचना है, जो रिच है हमें इनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि रिच जो पीपल है वो अकॉर्डिंग टू दैट अपने नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग वो कमोडिटी को परचेज कर लेते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल है वो तो खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमने ये जो गुड प्रोड्यूस किया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ये लोगों कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचे। तो जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड, फर्स्ट है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले आपको बताता हूँ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो चलिए एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, कि फंक्शनल, फंक्शन के आधार पर कौन सा फंक्शनल, यहाँ पर देख सकते हैं आप फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड वाले को रेंट मिलेगा या रॉयल्टी मिलेगी, लेबर को वेजेस मिलेगा या इसको सैलरी मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। अब जिनके पास, अब देखो लैंड वाले को ये इनकम आ गई, तो ये इनकम है लोगों की। ठीक है, तो इनकम के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो तो उनकी इनकम यहाँ से हो रही है, तो उसके हिसाब से जिसको जितनी इनकम मिल रही है वो उसके अकॉर्डिंग कमोडिटी को मार्केट से परचेज कर लेंगे अपने डिमांड के हिसाब से। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जिनके पास जितनी वेल्थ है वो उसके अकॉर्डिंग परचेज कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में जैसे मान लो कि ये 3 पीपल हैं, ए बी सी डी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए है, इसकी इनकम है 500, बी है, इसकी है 450 और इसकी है 510 और इसकी है 50। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ए, बी और सी, इन तीनों की इनकम लगभग 500 के अराउंड है। ठीक, लेकिन ये जो है इसकी इनकम बहुत कम है, ओनली 50 रुपीज है। तो ये इसी को कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो हमारी नेशनल इनकम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इनकम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जिसकी जितनी इनकम हो रही है, ये मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से। और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि जिनके पास जितनी वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग वो परचेज कर लेगा। तो एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो कमोडिटी का प्रोडक्शन हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। So children, this all for this video. In this video ये पॉइंट थे जो मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब चिल्ड्रन मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
Take care. God bless you. Thank you.